dear friends. I hope all of you are safe and staying at home only. I, Prashant Lakhani, welcomes you in the world of economics TYBCom semester 5. Friends, in our last session, we have discussed the full syllabus of TYBCom economics semester 5 with 4 modules. I have introduced all 4 modules in our last session. Today, we are going to start with our first module, that is macroeconomic overview of India 1991. Our first chapter is New Economic Policy 1991. Friends, since last 5 years in the subject of economics, continuously we are hearing this word, that is new economic policy. Maybe you, all of you, are knowing this topic as liberalization, privatization and globalization. Let me introduce. Let's begin with introduction part. Since 1951, the economy was functioning as a mixed economy. Friends, let me clarify one thing. Why we should compare anything with the year 1951? 1951 was the year when we started with our planning commission. Jawaharlal Nehru, our first prime minister, was so admired by Russia, and Russia was believing in planning, economic planning, 1 year economic plan, 2 years, 3 years, 5 year planning, पंचवर्षीय योजना, ये हमने में से बहुत लोगों ने सुना हुआ वर्ड है. तो जवाहरलाल नेहरू ऑल्सो followed that concept of economic planning, and for that purpose we established one planning commission, and planning commission started its work from the year 1951. At that time, the full world was divided into 2 different parts economically. Some of the countries like America, Britain, France, Germany, they were believing in capitalism. What is capitalism? Capitalism means all the business units, all the business undertakings are fully managed, controlled and undertaken by private companies with profit motive. Some of the other countries like Russia, China, Vietnam, Korea, they were believing in socialism. Now what is socialism? All the business units, all the economic activities of production, consumption, distribution, etc., they are fully managed, controlled and undertaken by the government. So full control of business decisions were taken by government. That is socialism. Friends, India was believing in mixed economy. Now what is mixed economy? All the advantages of capitalism and socialism are combined together. It means some of the business units are managed and controlled by government, and some of the business units are managed and controlled by private companies with profit motive. When the business firms are controlled by government, the main objective of the government is service motive. There is welfare of the people of the society, well-being of the society. Okay, so that is a great combination of capitalism and socialism. So since 1951, Indian economy was functioning as a mixed economy. There were controls of the government in the form of industrial licensing, import licensing and control foreign exchange regulations also. There were controls over the banking sector and capital market. Friends, now let me clarify this full statement. When in the year of 1951, when we started with our first 5-year plan, that was fully based on agriculture sector.
In the year of 1956, we came up with our second fire plan, and that was fully based on industrial sector. At that time, major decisions of large scale industries were taken by government. आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना हो, एट दैट टाइम इट वॉज नोन एज लाइसेंस राज. मतलब यू शुड टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. हर चीज के लिए वी नीड लाइसेंस. इंपोर्ट करना है, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस, इंपोर्ट लाइसेंस. जो भी बड़े मेजर डिसीजन होते हैं रिगार्डिंग प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, फिनांस, everything, the major decisions were taken by government only. And if you want to do anything in that, you have to take permission from government. तो पूरा कंट्रोल हो जा बिजनेस का इकोनॉमिक डिसीजन के लिए, वो सब गवर्नमेंट के हाथों में था. बैंकिंग सेक्टर, कैपिटल मार्केट. व्हाट इज बैंकिंग सेक्टर? फ्रेंड्स, अगर हम कोई कमर्शियल बैंक से लोन लेते थे, बिजनेस लोन, तो इंटरेस्ट रेट्स वर ऑल्सो डिसाइडेड बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके. कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट में अगर आपको IPO लेके आना हो, ट्रेडिंग के पर्पज से कुछ भी करना हो, तो देयर वाज नो एनी सेबी ड्यूरिंग दैट टाइम. गवर्नमेंट डिसीजन के हिसाब से स्टॉक मार्केट फंक्शनिंग करता था. तो अगर हम देखें इकोनॉमिकली, तो बेसिकली सभी बड़े डिसीजन जो थे वो गवर्नमेंट ले रही थी फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल पर्पस. राइट. तो यहां पे एक बात कंफर्म हो गई कि सभी बड़े डिसीजन जो वो गवर्नमेंट के हाथ में थे. द प्लानर्स डिसाइडेड दैट टू लिफ्ट अप द इकोनॉमी आउट ऑफ दिस स्टेट ऑफ अंडर डेवलपमेंट. फ्रेंड्स, उस वक्त इंडियन इकोनॉमी अंडर डेवलपमेंट पोजीशन में थी. सी, इवन वी नो सभी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, हैवी केमिकल इंडस्ट्रीज, डिफेंस इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, रेलवे, कम्युनिकेशन, ये सभी जो चीजें थी वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी. फ्रेंड्स, एंड वी नो कि गवर्नमेंट के कामकाज का तरीका क्या होता है. देयर वाज अ ग्रेट मिसमैनेजमेंट. 10 बजे अगर ऑफिस का टाइम है तो गवर्नमेंट जो बाबू लोग होते हैं, ऑफिसर्स, 10:30 से पहले कभी वो टेबल पे आते नहीं है. 11 बजे तक ये डिस्कशन होगा कि आज कौन सी मैडम नहीं आई है और कौन सी मैडम नहीं आई है. अगर 11:30 से 1 तक काम कर लिया तो वी आर लकी. लंच टाइम 1:30 to 2:30 का हो, लेकिन 1 बजे से डिस्कशन होगा कि आज कौन टिफिन में क्या लाया है. तो ये जो तरीके थे उनके काम करने के, 1:30 to 2:30 का लंच टाइम है, 3 o'clock के बाद टेबल पे आने का और फिर आलस खाते हुए बोलने का, एक छोटू एक कटिंग चाय ला, बाद में फाइल खोलेंगे. 4 बजे फाइल खुलेगी, 5 बजे फाइल बंद हो जाएगी. बस इतना है साइका. सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस मिसमैनेजमेंट इन बिजनेस एंटरप्राइजेस अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली कोई बड़ा डेवलपमेंट हाथ में नहीं आ रहा था. फ्रेंड्स, कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्रॉफिट मेकिंग नहीं थी. दे वर हेवी लॉस मेकिंग. एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दे पाऊं, एयर इंडिया जितनी बड़ी कंपनी, फ्रेंड्स, आज की तारीख में भी 53,000 करोड़ की लायबिलिटी में है और अब उसे गवर्नमेंट बेचने के लिए सोच रही है. तो ये चीजें उस वक्त से चलती आ रही है कि गवर्नमेंट कंपनीज जो होती है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो होते हैं, दे वर नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल. ना उनको कोई बड़े अच्छे ऑर्डर मिलते थे, ना वो अच्छे से काम करके वो ऑर्डर को पूरा कर पाते थे, ना वो प्रॉफिट मेकिंग थे. तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस, आफ्टर सम ऑफ द इयर्स, जब हम कंटिन्यूसली अंडर डेवलपमेंट में जाने लगे, तो प्लानिंग कमीशन के जो लोग थे उन्होंने सोचा कि कुछ भी करके इकोनॉमी को लिफ्ट अप करना पड़े फ्रॉम दिस स्टेट ऑफ अंडर डेवलपमेंट. तो कहीं ना कहीं ये सोच रखी गई कि कुछ तो करना पड़े इस चीज के लिए. ऑफ कोर्स यस, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लान ग्रोथ स्ट्रेटेजी with large scale industrialization through public sector units. सोच ये रखी गई
कि जो बड़े बड़े बिजनेस है वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स मतलब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में दे दिए जाए और बाकी सभी जो बिजनेस है उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया जाए। तब तक तो ये बोल रहे थे कि सब कुछ गवर्नमेंट संभाल लेगी, हम भी सोशलिज्म की तरफ जा रहे थे, पर फिर ये महसूस होने लगा कि नहीं, हम कुछ गलती कर रहे हैं। तो सभी बड़े बिजनेस गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को सोच दो और जो छोटी छोटी कंपनीज है, जो छोटी इंडस्ट्रीज है, वहां पे प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया जाए। दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। ये क्यों किया जाए? तो यहां पे एक सोच थी कि प्रॉफिट मोटिव के साथ डेवलपमेंट चाहिए। कंट्रोल ऑफ इंपोर्ट्स टू प्रमोट लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक सोच ये भी थी फ्रेंड्स कि हम इंपोर्ट्स को कंट्रोल करेंगे। जो चीजें बाहर से आ रही है, अगर यहाँ के बिजनेसमैन वो बना पाए, प्रोड्यूस कर पाए, उनको अगर हम कुछ इंसेंटिव्स दे दे, कुछ एनकरेज करें और यहाँ के लोग वो बना पाए, तो हमें बाहर से इंपोर्ट कम करना पड़ेगा और यहाँ पे उस बहाने इंडस्ट्री शुरू हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा, तो डेवलपमेंट का काम शुरू हो पाएगा। तो ये जो सोच थी वो सोच बहुत अच्छे से काम कर रही थी उस वक्त। रेगुलेट द फाइनेंशियल सेक्टर टू डाइवर्ट रिसोर्सेज टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। फ्रेंड्स, एक सोच ये भी थी कि जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, माइनिंग्स, फॉरेस्ट, ओशंस, वहां से जो नेचुरल रिसोर्सेज से हम कुछ कमा सकते हैं, उसको इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, लेकिन वो यूज जो है वो ऑन ग्राउंड वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल तक पहुंचना चाहिए। ये सब जो सोच थी, जो इंटेंशन थे, वो काफी अच्छे थे। एंड कीप प्राइवेट मोनोपोली अंडर चेक। फ्रेंड्स, कोई एक कंपनी आके किसी एक इंडस्ट्री में मोनोपोली तक ना पहुंच जाए, इस पर्पस के साथ ये सब समझना था। ड्यू टू मिसमैनेजमेंट, many of these enterprises made heavy loss. Because of all these problems, in 1980s, the government had begun to bring in some measures, some control on government undertakings. अगर मैं इस पूरे पैराग्राफ का निचोड़ समझूं, तो फ्रेंड्स निचोड़ सिर्फ इतना है कि वी वर सो कंफ्यूज्ड इन बिगिनिंग ऑफ आवर इकोनॉमी। 1951 से हम सोच रहे थे कि मिक्स इकोनॉमी पे जाएंगे, पर सभी बड़ी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी और गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स ठीक से काम नहीं कर रही थी। एंड दैट इज वाई एक सोच रखी गई कि क्यों ना कुछ पॉलिसी मेजर्स चेंज करके इकोनॉमी को डेवलपिंग पे लाया जाए। फ्रॉम द स्टेट ऑफ अंडर डेवलपमेंट we should move towards developing, and that's why we need the topic of new economic policy 1991. In 1991, India faced economic crisis in the following ways, and they provided the reasons for implementation of the new economic policy. फ्रेंड्स, यहां पे मैं कुछ और बातें कर लूं जो आंसर में नहीं दिया हुआ है। 1951 से लेकर 1990 तक प्लानिंग कमीशन ने काफी बार अपनी पॉलिसी मेजर्स चेंज की है, बट ऑल ऑफ दैट वर नॉट एबल टू गिव एनी फ्रूटफुल रिजल्ट्स फॉर डेवलपमेंट पर्पस। इन द ईयर ऑफ 1991, 24th July, at that time, P.V. Narasimha Rao was our Prime Minister and Dr. Manmohan Singh was our Finance Minister. उन्होंने पार्लियामेंट में एक प्रपोजल रखा and that proposal was new economic policy. In both the houses of parliament, ये पास हो चुका था। एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि हमें ऐसे कोई पॉलिसी को चेंज करने की जरूरत क्यों रही। 3 बड़े रीजन है कि वाई वी नीडेड
to make any drastic change in economic policy. हम किसी भी चीज को 91 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि 1991 तक अपनी पॉलिसी की जो थिंकिंग थी इंडियन इकोनॉमी की, हमने बाहर वालों के लिए अपने सभी दरवाजे बंद रखे थे फ्रेंड्स। सभी बड़ी बिजनेस इंडस्ट्रियलाइज जो थी वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। तो जब ये हम वर्ड यूज करते हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी? दैट इज आवर टॉपिक। लेट मी इंट्रोड्यूस द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज फिस्कल डेफिसिट्स। फ्रेंड्स, पहले तो लेट मी क्लेरिफाई वन थिंग। डेफिसिट का मतलब होता है लॉस एंड फिस्कल का मतलब होता है टैक्सेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट के टैक्सेशन पॉलिसी में जो लॉस दिखाई दे दैट इज फिस्कल डेफिसिट। SY बीकॉम इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 4 अगर थोड़ा भी याद हो तो इन दैट यू हैड द टॉपिक ऑफ पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, जहां पे आपको ये समझाया गया होगा कि गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमी चलाने के लिए जो टैक्स वो वसूल करते हैं पब्लिक से, बिजनेस हाउसेज से, वो उनका रेवेन्यू है। और डेवलपमेंट के लिए, डिफेंस के लिए जो खर्चा करना पड़ता है, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, वो उनका एक्सपेंडिचर है। जब गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कम हो और गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए खर्चा ज्यादा करती हो तो दैट इज फिस्कल डेफिसिट। 1991 में जो सिचुएशन थी, अगर हम उसको समझे तो द लॉन्ग टर्म ट्रेंड इन द गवर्नमेंट गवर्नमेंट finances indicated that the revenue generation had been lower than the expenditure। गवर्नमेंट की इनकम काफी कम थी और खर्चा तो काफी कर रही थी गवर्नमेंट। that leads to rising fiscal deficit, और वहीं से गवर्नमेंट की बैलेंस शीट जो है वो लॉस दिखाना शुरू करने लगी। दैट इज फिस्कल डेफिसिट। इंटरनल डेब्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज 48.6% ऑफ जीडीपी इन द ईयर 1990-91। फ्रेंड्स, ये एक नंबर आपको रट्टा मारना पड़ेगा। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 48.6% जो हिस्सा था वो गवर्नमेंट कर्ज लेकर चला रही थी। आप सोचिए गवर्नमेंट का लॉस किस लेवल पे गया होगा कि नियर टू 50% ऑफ योर टर्नओवर आप कर्ज के पैसे से चला रहे हो। आसान लैंग्वेज में कहूँ तो अगर इंडिया के अंदर एक साल में सपोज हम 100 करोड़ का सामान प्रोड्यूस करते हैं विद इन द बॉर्डर ऑफ आवर कंट्री ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर, दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, अगर हम 100 करोड़ का सामान प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें से अप्रोक्सीमेट 48.6 करोड़ रुपीस का प्रोडक्शन जो था वो गवर्नमेंट ने पैसे कर्ज लिए थे एंड देयर वाज इंटरनल डेब्ट। भले इंडिया के अंदर से ही कर्ज लिया था पर वो कर्ज लिया हुआ पैसा था फ्रेंड्स, और उसी से अपना ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ रहा था। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का जो डेफिसिट था वो काफी हैवी था, और जब गवर्नमेंट कर्ज लेगी तो उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उसका इंटरेस्ट पे करने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा तो था नहीं। एक डाउट आएगा यहाँ पे, सर तो गवर्नमेंट की तिजोरी में पैसे नहीं थे? नहीं थे फ्रेंड्स, गवर्नमेंट की तिजोरी में पैसे नहीं थे। रीजन ये था कि गवर्नमेंट का जो कमाई होता है वो टैक्स रेवेन्यू होता है। ज्यादातर सभी बड़े बिजनेस इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट की खुद की थी और वो लॉस मेकिंग थी, तो वहां से कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था। प्राइवेट सेक्टर को आपने कोई बढ़ावा दिया नहीं था, तो कोई बड़े बिजनेस हाउसेस कॉर्पोरेट लेवल पे थे नहीं जो बड़ी इनकम कमाए और गवर्नमेंट को बड़ा टैक्स पे करे। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास बिजनेस हाउसेस से कोई बड़ा टैक्स रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था फ्रेंड्स। इसकी एक साइड इफेक्ट समझाऊं तो जब गवर्नमेंट लॉस मेकिंग इंडस्ट्री चला रही है, गवर्नमेंट के पास कोई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑर्डर नहीं आ रहे क्योंकि गवर्नमेंट के खुद के पास पैसे नहीं है, टैक्स के पैसे नहीं आए इसलिए गवर्नमेंट ने कोई बड़े और ऑर्डर पास ऑन नहीं किए, इसलिए कोई बड़ी कंपनी को और इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े ऑर्डर मिले नहीं। नतीजा ये रहा कि लोखंड
सीमेंट, ये जो भी बड़ी बड़ी कंपनी होती है, इनको कोई बड़े ऑर्डर नहीं मिले थे। इसका इफेक्ट ये हुआ कि उन्होंने ज्यादा वर्कर्स को अपॉइंट नहीं किया। दैट लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। फ्रेंड्स, जब पब्लिक कमा नहीं रही थी क्योंकि उनके पास काम नहीं था, वर्कर्स के पास जॉब नहीं थे, वर्क नहीं था, इसलिए वो कमा नहीं रहे थे, इसलिए वो भी गवर्नमेंट को पर्सनल इनकम टैक्स जो पे करना होता है वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनकी इनकम ही जनरेट नहीं हो रही थी। तो ये सभी चीजों को जब साथ में देखा जाए एक कॉम्पैक्ट विजन से, तो वी फील कि गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू की इनकम नहीं थी, कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहे थे, और खर्चा तो था ही क्योंकि डिफेंस के लिए जो खर्च करना पड़ता है वो तो करना ही पड़ता है। फ्रेंड्स, 1951 से लेकर 1991 तक में गवर्नमेंट ने डिफेंस के लिए काफी खर्चा किया था क्योंकि 3 बड़ी वॉर हुई थी। 1962 चाइना के साथ जो हम हार गए थे, 1965 पाकिस्तान के साथ, अगेन 1971 पाकिस्तान के साथ जो हम जीत गए थे, पर मॉनेटरी लॉस काफी हुआ था फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को जब साथ में देखा जाए तो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट हैवी था, इसलिए नियर टू 50% गवर्नमेंट कर्ज ले चुकी थी इकोनॉमी को चलाने के लिए, और वो कर्ज जो लिया था उसका इंटरेस्ट पे करने का पैसा भी अब गवर्नमेंट के पास नहीं था फ्रेंड्स। इसलिए वी फेल्ड कि हमें कुछ पॉलिसी मेजर्स चेंज करने चाहिए इकोनॉमिकली। दैट वाज द फर्स्ट बेसिक रीजन, दैट इज fiscal deficit. Friends, our second basic reason is balance of payment crisis. First of all, let me clarify what is balance of payment crisis. हम इसको क्या समझते हैं? Let me introduce what is balance of payment. Friends, जैसे आप financial account 1 जो पढ़ते हो, उसमें बैलेंस शीट बनाते हो from one company point of view. राइट, कंपनी का रिसिप्ट, कंपनी का पेमेंट, कैश बुक जो हम बनाते हैं प्रोप्राइटरशिप लेवल पे। सिमिलरली, जब सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1st April to 31st March, वॉट एवर वी एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज, टू फॉरेन कंट्रीज, and we receive the money in foreign currency, and whatever we import from foreign countries we have to make some payment in foreign currency. उसका जो सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ आवर कंट्री विथ बिकॉज ऑफ सम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस, फॉरेन ट्रेड विथ अदर कंट्रीज, उसका जो सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग होता है, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। फ्रेंड्स, 1991 में इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो हालत थी, अगर मैं आसान लैंग्वेज बोलूं तो वी वर इन क्राइसिस, वी वर इन हेवी क्राइसिस। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो वर्ड होता है, गवर्नमेंट की तिजोरी में डॉलर का पेमेंट करने के लिए जो डॉलर होने चाहिए, मैं ये कह सकता हूं फ्रेंड्स कि सिर्फ 15 दिन तक का अगर हम इंपोर्ट करें उतना ही पेमेंट करने का रिजर्व हमारे पास अवेलेबल था। फ्रेंड्स, उस वक्त हम नॉर्मली इराक से पेट्रोल इंपोर्ट करते थे। 70% से ज्यादा पेट्रोल अपना इराक से इंपोर्ट होता था, और रोज ट्रांसपोर्ट के जो पेट्रोल लगे वो रोज हमें पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़े और उसका रोज पेमेंट करना पड़े, एवरी डे का। तो सिर्फ 15 दिन तक का इंपोर्ट का पेमेंट करने का रिजर्व हमारे पास अवेलेबल था फ्रेंड्स। इट मीन कि 16वें दिन की सुबह अगर हमने पेट्रोल इंपोर्ट किया तो उसका पेमेंट करने के लिए तिजोरी में कोई पैसे नहीं थे, हमारे पास बाबा जी का ठुल्लू था। जस्ट किडिंग फ्रेंड्स। अगर हम इसको इकोनॉमिक लैंग्वेज में समझना चाहें तो इसका मतलब क्या समझे? फॉरेन रिजर्व्स स्टार्टेड टू डिक्लाइन फ्रॉम $3.1 बिलियन in August 1990 to $896 million in January 1991. फ्रेंड्स, 3.1 बिलियन से हम आ चुके थे 896 मिलियन पे। नो डाउट ये डॉलर में गिनना है क्योंकि ये फॉरेन ट्रांजेक्शन है, इंटरनेशनल ट्रेड के हिसाब से सोचना है। पर ये डिक्लाइन अगर हम सोचे तो ये बहुत बड़ा डिक्लाइन हो गया फ्रेंड्स,
क्योंकि अब ज्यादातर चीजें हम इंपोर्ट करते थे और उसका पेमेंट तो हमें करना ही था। तो गवर्नमेंट उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, तो रिसीव साइड नीचे जा रहा था और पेमेंट साइड बढ़ रहा था। देयर इज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अगर हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझना चाहे तो द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस वॉज ऑल्सो ड्यू टू लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस in the government's ability to manage an outflow on non-resident Indian deposits. Friends, सच बताऊं तो उस वक्त इंडियन पॉलिटिक्स जो था 1991 तक में, वहां पे गवर्नमेंट स्टेबल नहीं थी। तो बाहर से जो लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते थे, देयर इज कैपिटल इनफ्लो, वो रिवर्स होने लगा। फ्रेंड्स, लोग अपना पैसा इंडिया की इकोनॉमी से निकालना शुरू कर चुके थे। उसे हम बोलते हैं कैपिटल आउटफ्लो। जो भी नॉन इंडियन रेसिडेंट्स थे, एनआरआई जिसे हम बोले, उन्होंने जो पैसे यहाँ पे डिपॉजिट किए थे, जो इन्वेस्टमेंट किया था बिजनेस के अंदर, वो सब वो लोग वापस विड्रॉ करने लगे। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट हमें पे करना पड़ा और सामने कोई भी डॉलर्स रिसीव साइड नहीं आ रहे थे। हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इंपोर्ट बढ़ रहा था, इसलिए उसका पेमेंट भी हमें फॉरेन करेंसी में करना था। जो कैपिटल बाहर से आता है तब तो बहुत अच्छा लगता है, पर जो वो वापस विड्रॉ होता है, दैट इज कैपिटल आउटफ्लो, वो फॉरेन करेंसी में वापस जाता है। फ्रेंड्स, तो हमें इंडिया के मार्केट से रुपीज को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ा और एक बहुत बड़ा अमाउंट हमें पे करना पड़ा इन डॉलर्स। नतीजा ये निकला कि अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट हेवी क्राइसिस दिखाने लगा। फ्रेंड्स, that was our second reason, balance of payment crisis. Our third reason is high inflationary pressure. In 1991, the rate of inflation crossed double digits. It was near to 10.2%, friends. The prices of petroleum products and indirect taxes on commodities and services, ये दोनों चीजें इतनी बढ़ चुकी थी। फ्रेंड्स, आप बोले सर इससे क्या इफेक्ट हुआ? फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लैरिफाई व्हाट इज इन्फ्लेशन। राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज। अब उसके रीजन जो भी हो, ज्यादातर चीजें हम इंपोर्ट करते थे और वो सभी चीजें हम इंपोर्ट करते थे, इसको बड़ी हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। बिकॉज ऑफ दैट रीजन अपना प्राइस जो था मार्केट में वो हर प्रोडक्ट का बढ़ने गया। इवन एक्साइज ड्यूटी भी बहुत ज्यादा था। फ्रेंड्स, इफ आई से यू, आपको लगेगा मैं फेंक रहा हूं। फ्रेंड्स, कुछ प्रोडक्ट जो इंडिया में हम प्रोड्यूस करते थे उसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी थी, इट वॉज नियर टू 52%। और कुछ सामान जो बाहर से इंपोर्ट करते थे उसके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी थी, इट वॉज मोर देन 300% ऑफ दैट प्राइस। तो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजंस हर चीज का प्राइस मार्केट में बढ़ते गया। फ्रेंड्स, लोगों का परचेजिंग पावर उतना नहीं था। जो पेट्रोल हम इंपोर्ट करते थे वो भी काफी महंगा हो चुका था। फ्रेंड्स, उसमें एक और दिक्कत शुरू हुई थी। अमेरिका और इराक के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर गल्फ वॉर शुरू हुआ था। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन पेट्रोल के प्राइस और बढ़ने लगे। अब आप सब एक साथ सोचिए कि इन्फ्लेशन का रेट 10.2%। फ्रेंड्स, आज की तारीख में इन्फ्लेशन रेट है अप्रोक्सीमेट 7.2%। फिर भी हम लोग हैं कि बहुत महंगाई बढ़ चुकी है। उस वक्त वो 10.2 को क्रॉस कर चुका था। फ्रेंड्स, तो अगर हम इस चीज को ठीक से समझें तो ये फील होता है कि एक बाजू हर चीज महंगी है, पब्लिक का कोई रेवेन्यू है नहीं, पब्लिक कुछ खरीद नहीं पाएगी क्योंकि प्राइस ज्यादा है। जब पब्लिक खरीद नहीं पाएगी, इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा था, पब्लिक का इनकम नहीं है, इसलिए पब्लिक डायरेक्ट टैक्स पे नहीं कर पा रही थी, तो गवर्नमेंट की कोई इनकम नहीं हो रही थी। गवर्नमेंट की कोई इनकम नहीं हो रही थी, इसलिए फिस्कल डेफिसिट था। फिस्कल डेफिसिट की वजह से गवर्नमेंट कोई बड़े डेवलपमेंट के ऑर्डर पास ऑन नहीं कर रही थी किसी गवर्नमेंट कंपनी को। बिकॉज ऑफ द रीजन लोगों को काम नहीं मिल रहा था क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट था।
एक बाजू चीजों की प्राइस बढ़ रही है, दूसरी बाजू किसी की इनकम तो कुछ है नहीं, तो गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू कुछ नहीं आ रहा था, ना हम उतना एक्सपोर्ट बढ़ा पा रहे थे, सामने इंपोर्ट ज्यादा कर रहे थे और उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी भी ज्यादा थी और इंपोर्ट का प्राइस भी बढ़ रहा था, तो अपना पेमेंट बढ़ते जा रहा था, इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में था। ये तीनों को जब साथ में सोचा जाए तो हम ये मान लेंगे कि इंडियन इकोनॉमी 1991 में फ्रेंड्स कॉलेप्स होने की तैयारी में थी। इन सभी चीजों को साथ में सोचकर डॉक्टर मनमोहन सिंह फेल्ट ड्यूरिंग दैट टाइम कि कुछ ना कुछ करके हमें इकोनॉमी को आउटकम पर लाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए कुछ मेजर चेंजेस की जरूरत है। एंड दैट इज द एक्चुअल टॉपिक व्हाई वी नीडेड रीजंस फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991. Thank you so much, friends. Soon I'll approach you again. Stay at home and stay safe. Thank you.